Hello everyone, I am Irshad. I am a medical laboratory technologist. So today we will talk about introduction of medical laboratory technology. So what is medical laboratory technology? So medical laboratory technology is a profession in which medical tests are performed for the diagnosis and treatment of a patient. मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम मेडिकल टेस्ट्स को परफॉर्म करते हैं पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए हम इसमें मेडिकल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं सो इट्स मीन दैट मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेडिकल diagnosis. It has been said that almost 80% of the medical diagnoses are confirmed by the laboratories values. तकरीबन 80% जो मेडिकल डायग्नोसिस है ये हम लेबॉर्ट्री वैल्यूज़ पे कंफर्म करते हैं तो दैट्स वाई we can say that medical lab technology play an important role in the medical diagnosis. But some of the healthcare professional don't know about the term medical laboratory technology meaning. So it play an important role in patient care. Like how it can play an important role in patient care by providing timely, accurate and reliable result to the patient. मतलब ये जो है ये पेशेंट केयर में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस तरह प्ले करता है पेशेंट के केयर में पेशेंट को टाइमली एक्यूरेट और रिलायबल टेस्ट रिजल्ट जो है ये प्रोवाइड कर देता है now which type of tests are performed so there are many type of tests performed in the medical laboratory for the diagnosis and monitoring of patients for example analyzing and examine of body fluid and cells we also determine the chemical content of fluid, look for parasites, bacteria, and other microorganisms. Also, look for abnormal cells in blood and body fluids. Uh, match blood for transfusion and also look for drug level in the blood. सो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है जो कि हम लेबॉर्ट्री में परफॉर्म कर देते हैं इसके बाद जो है वो कुछ ब्रांचेस है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का बहुत सारी ब्रांचेस है लेकिन फ्यू उसमें से है माइक्रोबायोलॉजी है एस्ट्रोपैथोलॉजी है बायोकेमिस्ट्री है और हेमाटोलॉजी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी so microbiology is the one of the branch of medical lab technology in which we study about the microorganism like parasite, bacteria, fungi, uh, and many other microorganisms. Now there are subcategories of microbiology like bacteriology, in which we study about bacteria, mycology, in which we study about the fungi, and also parasitology, in which we study about the parasites, and virology, in which we study about the viruses. The second branch of the medical lab technology is the histopathology. So, in histopathology, we study about the microscopic examination of tissues in order to study the disease or abnormality. हिस्टोपैथोलॉजी में हम टिश्यूज़ के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं किस लिए ताकि हम किसी डिज़ीज़ की एबनॉर्मेलिटी के बारे में स्टडी कर सकें नाउ जब हम किसी इंडिविजुअल सेल में एबनॉर्मेलिटी को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे सो द स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन इंडिविजुअल सेल इज़ कॉल्ड साइटोपैथोलॉजी जब हम फिर किसी इंडिविजुअल सेल में एबनॉर्मेलिटी को स्टडी करेंगे तो उसको हम साइटोपैथोलॉजी कहते हैं
The third branch of the medical lab technology is the biochemistry. So, what is biochemistry? Biochemistry is the study of chemical substances and vital processes occur in living organisms. The fourth one is the hematology. So, in hematology, we study about the blood forming organs and blood disease. हेमाटोलॉजी में हम ब्लड के बारे में मेनली स्टडी करेंगे, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे, और जो हमारे पास ब्लड डिजीज़ होते हैं डिफरेंट, लाइक ल्यूकीमिया हो गया, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. Now there are some types of the laboratory safety level, which are the four types: level 1, level 2, level 3, and level 4. So in biosafety level 1, it is the least level where there is no threat. Deal with the sample. ये बायोसेफ्टी लेवल 1 में इसी तरह होता है कि जब हम कोई सैंपल के साथ डील करते हैं तो उसमें वर्कर को जो है वो कोई थ्रेट नहीं पहुंचता. फॉर एग्जांपल नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई. In biosafety level 2, the worker affected moderately, but it is curable in short-term treatment. For instance, Staphylococcus aureus. लेवल 2 में हमारे पास जो है वो वर्कर मॉडरेटली इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जब वो इफ़ेक्ट हो जाए तो उसकी जो ट्रीटमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में वो रिकवर हो जाता है, जिस तरह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. Biosafety level 3 may cause lethal diseases via aerosol transmissions, that is from simple inhalation of particles or droplets. बायोसेफ्टी लेवल 3 जो है ये एक लीथल डिजीज़ काज करता है, और वो किस तरह काज करता है, एरोसोल ट्रांसमिशन की वजह से वो काज करता है. फॉर एग्जांपल सिंपल जब हम किसी चीज़ को जो है वो इनहेल करें, किसी पार्टिकल्स को इनहेल करें या ड्रॉपलेट्स को इनहेल करें, तो वो जो है वो हमें वो डिजीज़ काज कर सकता है. इसका जो है वो एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एरोसोल की वजह से या कोई पार्टिकल की जब आप उसका इनहेल करें तो वो हमें लग जाती है. बट इसके लिए फिर जो ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है. इन बायोसेफ्टी लेवल 4, इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस लेवल एंड पोज अ हाई रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़. ये सबसे जो है वो डेंजरस लेवल है, और इसमें जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का बहुत हाई रिस्क होता है, और उसकी ट्रीटमेंट जो है ये भी अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल एबोला वायरस जो है ये इसका एग्जांपल है, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट ये अवेलेबल नहीं है. तो ये हमारे पास जो है वो 4 बायोसेफ्टी लेवल के टाइप्स हो गए. तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसको सीखा होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.